just introduced in the last session. So this was the introduction part, where what are principal stress and what are principal planes that we have tried to understand. So basically, we know that now till now. Okay. So now we know that if whenever any kind of load, which whatever load you apply on the member, okay, the effect of it, there will be on every plane there will be a normal stress and there will be a shear stress. Now this plane can be anywhere at ranging from theta equal to 0 to theta equal to 180 or 360, maybe complete circle. The planes can be anywhere, but on different planes the values of sigma and tau varies. So we identified such planes on which the shear stress is 0. Such plane on which the shear stress is 0, only normal stress is acting. That particular plane we call it as principal plane. So if you remember, okay, yeah. So Windows is coming. Wait a minute. Okay. So now let us continue. So here in this particular part, we discussed about how this biaxial system. In biaxial system, if there are two perpendicular stresses acting on two perpendicular planes, what will be the effect on any oblique plane? So we derived some formulas, but these all formulas were just basis for our complex system, which we discussed later on here. Here, general plane system in which we have both the type of stresses, normal as well as perpendicular shear stresses on both the planes, sigma x, sigma y, tau xy, and so on. So as an effect of all these, what are the stresses? Normal and perpendicular normal and shear stresses on the plane BC, which is oblique at an angle theta. On that theta plane, what are the shear stresses that we figured out? And it comes out to be sigma n is sigma x plus sigma y by 2, sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta, tau xy sin theta. So this formula you can remember for calculating normal stress, on any of the plane, right? Uh, okay. Now let's go to the next one. In the next part, we discussed about tau, and the next one was the principal planes. So the principal stresses are given by this particular formula. Analytically, we have derived, and the principal location of principal planes is given by tan 2 theta is equal to 2x tau xy sigma x minus sigma y. Okay. Similarly, we solved for location of maximum principal shear stress, maximum shear stress, which was tan theta just reciprocal है इसका, and sigma y minus sigma x. Okay, and tau xy is the, if you remember, ये formula का ये वाला part है, plus or half root of sigma x minus sigma y the whole square plus 2 tau xy the whole square. So this is the tau maximum. So here from these two relations, tau maximum, from these two relations, what we can calculate analytically where the shear stress, and this was our Mohr circle method. So in Mohr circle method, we tried to understand how the Mohr circle is to be drawn, what axis represents what different quantities, and so we know that on x-axis there is normal stress, on y-axis there is shear stress. Okay, we start with plotting the major normal stresses which are given, and then we locate the center of the Mohr circle,
Now how it is done, let's understand once again by taking this particular example. Okay, so let us now take this particular example for which we will understand this. Now here, yeah, now in this particular thing, I hope everybody can see this, right? Let me hide this plane also. Oh, okay. I require some of the circles. That is why I'm keeping all these things. Insert sheets. Okay. Yeah. Now see here, there is a case given, and we have to solve this by more circle method. Okay. I will also solve it by normal formula method because you know this formula is everywhere. Everything you know right now. तो तुम्हें वो formulas पता है, तो you can do it. But still, अगर तुम्हें formulas नहीं पता है, and if you want to do it by more circle, sometimes in the problem it will be mentioned that solve this particular numerical by using the analytical formulas. So that time you cannot solve it by more circle method because the examiner wants you to remember those formulas. Okay, and if it is not mentioned, you have a choice of solving by more circle graphically or this one. Now here, how we can start with. So whenever we start, we can just understand what are the things given here. The things given here are sigma x value is given, that is 50 MPa. So we can write down sigma x as 50 MPa, which is given to us. Sigma y as minus 30 MPa. Minus 30. As you can see, why I'm writing minus 30 because it is downward, right? And the tau xy value is 20 MPa. Okay, so these are the things given. We have to just locate the what is asked, normal and shear stresses on plane AB, and we have to also find out the principal planes and principal stresses. Okay, so how we can start with? The very first thing what we can do is we need some axis. So let us go for drawing the axis. So I'm just taking this. So let's say this is my x-axis. Similarly, I will take y-axis also. Okay, so I've taken x and y axis. Now this axis, this is my sigma normal stress, this is my tau shear stress, and this is my point origin point. Okay, now how we can plot this? How we can plot this is the first of all, we'll take some scale. Right now, instead of taking the scale, you can directly plot, because we are not going to we are solving it by more circle but not graphically. We will solve it by geometry. By assuming that distance is equal to 50, we'll assume it and solve it. Now let's see how we can do. So let us take 50 mm is this much length I am assuming. So therefore I will plus 50 is I am plotting on this side, and I will plot a point A first. This is my point A, and OA, the length of OA represents 50 MPa, that I know. And okay, so your length of OA कितना है? 50 MPa. That is, I am writing this as OA. Okay. Now the other point is how much? It is B point is minus 30. So अगर B point मुझे minus 30 plot करना है, तो I need to go to the other side. So I'll go here and I will assume अगर ये 50 है तो 30 मतलब approximately इतना होना चाहिए. Let us take, this is my point B and OB is 30. OB is 30. So I got A and B value. Now 20 MPa. Now 20 MPa. So how we can do? So you see here on 50 MPa वाला जो है, उधर ये tau का value, ये जो tau मैं assume कर रहा हूँ 20 MPa tau xy, that is anti-clockwise. So assuming that anti-clockwise positive, we can assume vice versa. It is not the compulsory one, but still if I assume this as positive, so यहाँ पे मुझे vertical line बनाना पड़ेगा जिसका magnitude 20 होना चाहिए, right? So I will start plotting 20 MPa वाला line. Let's say I'm assuming this height is of 20, and I'm getting this as one point. Let's say this is C. Similarly on B it is
the clockwise, so therefore I need to come down as 20 जो दिया था वहाँ पे, and I will assume the point as D. So this is perpendicular to both. So I got this CD, right? Now what I need to do is I need to join this CD. मुझे क्या करना पड़ेगा, ये CD को join करना पड़ेगा. So let me try to join it by the line. Now ये मेरा line join होते वक्त it should pass through center, that is why. Okay. Sir, it will not pass through center because average of both the stresses No, is it will not pass 10. through center. That is what I'm doing it. Of course, we will locate the center by using where it intersects the horizontal axis. Okay. सर कंट्रोल Z से हो जाएगा. Assuming. Okay. So drawing with cursor becomes difficult. Fine. So as you can see, I have tried to match their CD. So when I join this CD, wherever I get this particular point where it intersects the horizontal axis, we will call this point as E, which is the center of the Mohr circle. Now, if you take radius as CE or CD, DE, you will get the Mohr circle. So now let us try to draw the Mohr circle. एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ. ओके, वो सर्कल भी थोड़ा अजीब ही आने वाला है, but still we will try to join it. Okay. Yeah. So a circle we need circle so that it should pass through C and D and the center is there. अब ये सब तो मैं कर्सर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी, but still you can draw it the way you want. हमें सर्कल का शेप से ज़्यादा उसका वैल्यूज इम्पोर्टेंट रहेगा. Now you can see I tried to draw. Okay, see here, सर्कल को हमने ट्राई तो किया है, थोड़ा इसको डार्क कर देंगे. Okay. So see here, I have drawn the circle. Circle passes through C and D. मतलब ये हमारा Mohr circle हो गया and इसका E center है. So now I am trying to get this. So this is our Mohr circle. Now once you get this Mohr circle, this CD line is also called as baseline because all the angles which are going to measure are with respect to this baseline. Okay. Now ये सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, राइट? ये सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को. वो दो पॉइंट्स कौन से? दे आर नॉट ए एंड बी तो अलग पॉइंट्स है. दे आर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट एक्स एंड दिस इज द पॉइंट वाई. ओके, नाउ दिस एक्स वाला ये जो पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स जस्ट डिफरेंट कलर. तो ये अगर डिस्टेंस मैंने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस होगा मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विच आई विल कॉल इट एज P1. एंड ये अगर डिस्टेंस मैंने मेजर किया, सो दैट इज माय माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस विच इज P2. ओके, अब ये P1 P2 का वैल्यूज मुझे फाइंड करना है. हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दोस वैल्यूज दैट आई लेट यू नो. See here, now if I measure from here to here, this was 50 MPa, right? And from B to O, here to here,
that was 30 MPa magnitude wise, right? And ये जो vertical height है उसका वो कितना था 20 MPa. You remember this? This is what we have. Okay. Now see here, if I want to find out this P1, मतलब मुझे ये x से लेकर o तक का distance find करना है. So how will you find out? Any idea? Sir, OE plus EX. OE plus Radius. radius of the circle, right? Now see here, how we can locate the how we can find out the radius of the Mohr circle. Now अगर मैं इसको ये करता हूँ, सर वो राइट एंगल ट्रायंगल से yes, any geometry use करना है तुम्हें, तो those who are good in geometry part उनको कोई problem नहीं होगा. मैं थोड़ा इसको ये axis को बढ़ा रहा हूँ ताकि ये intersect भी करे. Okay, थोड़ा छोटा करते हैं. Yeah, you can see these are the action point. अभी तुम्हारा जो y axis है वो y axis कहीं पे दो points को cut कर रहा है, right? I'm naming these points. Let's say this is the point and this is the other point. तो ये जो vertical distance अगर तुम measure करोगे तो this represents your tau shear axis, right? ये दो points हैं. Now यहाँ पे हमें maximum अगर tau maximum का value find करना है तो you have to draw vertical line through point E. And ये जो points होगा वो होगा तुम्हारा minus tau maximum and जो ऊपर वाला point होगा वो होगा plus tau maximum, right? Because उससे ज़्यादा y coordinate तुम्हें नहीं मिलेगा. So that is your tau maximum का value. Now how to get this this one CE distance वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे right angle triangle है. ये right angle triangle में हाँ but ये distance हमारा 50 है, ठीक है? और ये distance 30 है. So how much is this distance? How will I get this triangle? इसके लिए कैसे solve करूँगा? Any idea? Yes. How I will get some values? कैसे values मिलना चालू कर? Similar triangle से sir. In triangle ODB and EDB हमारे पास लगभग सारे distances हैं. In this triangle? Yes sir. हाँ, how will you get this? सर एक तो हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे OE जो बनेगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है y एक्सिस के साथ. Okay. And the bigger triangle will be EBD. Yes. So you can take these triangles. ये angles तो उनका same रहेगा, vertical opposite angles, right? So you will take this distance BE and इसको अगर मैंने कुछ x बोल दिया तो या फिर x या whatever the OB या OE रखो उसे x OE what do you say AE and BE, ठीक है? उनका टोटल जो है A और B का टोटल जो है वो हमें पता है, that is 50 plus 30 which is 180. देखो B से लेके A तक का जो डिस्टेंस है this side total I know it is 180, बट हमें सिमिलर ट्रायंगल से उन दोनों के बीच में रेशियो मिलेगा. एंड वंस आई गेट दैट रेशियो कैसे सिमिलर ट्रायंगल लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा BED एंड ट्रायंगल AEC, राइट? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से आई कैन राइट डाउन BE अपॉन अरे बट ओके ओके फाइन. ट्रायंगल मेथड को दिया हमने. ये सिमिलर सर ट्रायंगल जो दोनों ट्रायंगल इक्वल रहेंगे. सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों सर B इक्वल टू A ही आएगा बिकॉज़ दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ. रेडियस है ना दोनों. यस सर ऐसे हो गया. हाँ, तो ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है. ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है. अगर मिड पॉइंट रहेगा तो 80 प्लस 50 कितना होता है? 50 प्लस 80 कितना? 130. सॉरी 50 प्लस 30 सॉरी 50 प्लस 30 80 सर and 40 आएगा होगा सर 40. AE 40 आएगा सर. हाँ ये हमारा होगा 40. डायरेक्टली मिल जाता है, कोई सिमिलर ट्रायंगल की जरूरत नहीं है. ये 40 हो जाएगा. erase this all. Okay, so if we get this as 40 and this, तो अगर ये 40 हो गया तो ये बचा हुआ कितना है? 10 है, बराबर है ना? तो अभी ये ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस उसका 40 है, हाइट उसका 20 है. यू विल गेट दिस रेडियस. दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस
20 स्क्वायर, बराबर. तो यू विल गेट द रेडियस का डिस्टेंस. ठीक है, कितना आएगा वो बताओ जरा मुझे. 44.72. 44.72. 72. 72. You got this as 44.72. Okay, now can you tell me the what will be the value of P? P1. देखो E से लेके X तक हमें 54.72. पता है. हाँ, तो it is 44.72 plus 10, बराबर ना. Yes, sir. Yes, sir. So that is 54.72 MPa. That is your maximum principal stress, major principal stress. And what is P2? What is P2? 34.72. हाँ, तो ये देखो, नहीं 30 कौन सा 34.72. देखो, Yes, sir. इससे लेके यहाँ तक हमें पता है कि 44 है. 34.72 आएगा ना सर. वेरी गुड. सो इट इज 44.72 minus 10 करो. 30. 34.72. 34.72 MPa. बट उसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे बिकॉज अभी यहाँ पे तो हम लोग डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं. बट P2 इज नेगेटिव ऑन द अदर साइड, राइट. इट इज ऑन द अदर साइड. Fine. So you got this P1 and P2, but you got principal stresses. But they are also asking you the location of principal planes. How will you get the location? So location हमें क्या पता है? Principal plane. देखो, all the we know that principal stresses are on this horizontal line, right? Horizontal line or horizontal axis. So you need to measure this particular distances. ठीक है? Angle measured in this clockwise will be the angles which are measured. एंगल्स के लिए भी तुम कन्वेंशन रख सकते हो. एक डायरेक्शन में एंगल तुम पॉजिटिव रख सकते हो, एक डायरेक्शन में नेगेटिव रख सकते हो. ठीक है, ये मल्टीपल आंसर्स इसका आ सकता है बिकॉज द कन्वेंशन हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग इट. सो इफ यू मेजर दिस एंगल एंड दैट एंगल वी विल कॉल इट एज 2 थीटा 1. क्या बोलेंगे वो एंगल को हम लोग 2 थीटा 1, बिकॉज यू नो दैट ये जो फॉर्मूलाज था हमारा उसमें sin 2 थीटा cos 2 थीटा था. सो ऑल दिस सर्कल इज मेड बेस्ड ऑन अज्यूमिंग द एंगल इज डबल देन द एक्चुअल एंगल. So therefore 2 theta 1 हमें मिलेगा. एंड ये एंगल तुम मेजर करोगे. अभी ये मेजर करने के लिए हमारे पास ये नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट बिकॉज वी नो इन दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वी नो एडजेसेंट साइड, वी नो अपोजिट साइड, वी नो hypotenuse also. So you there is no much big deal in finding out 2 theta 1. You can write down the tan of 2 theta 1 is equal to 20/40 and you will get theta 1. Once you get theta 1, तो देखो हमें P1 का वैल्यू मिल गया, हमें P2 का वैल्यू मिल गया, हमें थीटा 1 का वैल्यू मिल जाएगा. थीटा 2 का वैल्यू क्या होता है? थीटा 1 + 90. वो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर तुम्हें वो यहाँ से लेके 180 उसमें ऐड करना पड़ेगा. ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो. थीटा 1 + 90. ओके, देन we are done with the principal stress. Now what is your tau maximum? How will you get the value of tau maximum? The tau maximum is nothing but the radius of your Mohr circle. It is nothing but the radius of Mohr circle, right ना. देखो E और ये जो डिस्टेंस है ये nothing but radius ही है. तो ये रेडियस हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज 44.72. सो योर टाउ मैक्सिमम इज आल्सो डन, बट यू नीड टू फाइंड आउट द एंगल. तो अभी ये वाला एंगल अगर तुम मेजर करोगे, ये वाला एंगल, तो दैट इज योर 2 थीटा 3. ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, तो sir. ये जो एंगल है, अभी ये एंगल कैसे मिलेगा? तो देखो ये तुमने फाइंड करके रखा है एंगल, राइट. जो एंगल तुमने फाइंड करके रखा है, अच्छा, somebody is asking, sir, can you please explain again that why we take 2 theta and all? Acha, okay, so those who don't know 2 theta, so if you remember the formula which we derived last time, so in this formula is sigma n and tau, we have this cos 2 theta and sin 2 theta terms, right. So the Mohr circle method is designed with respect to these formulas to get the formulas by using the circle by defining this. तो अगर ये फॉर्मूला सिग्मा एन और टाउ को मैं अगर स्क्वायर करूं और रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करूं, तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 करके हमने यूज किया है. सो देयरफॉर 2 थीटा इज द एंगल. ओके, सो दैट इज व्हाई गेटिंग दिस 2 थीटा. ओके, चलेगा. तो अभी ये 2 थीटा 3 मिला हमें. हु इज दैट? जस्ट म्यूट योरसेल्फ इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू मी. Okay, so 2 theta 3. Once I know 2 theta 3 here, I can get that value. यहाँ पे मुझे theta 3 का वैल्यू मिलेगा. Once I know theta 3, theta 4 क्या हो जाएगा? How much? It is theta 3 plus 90, right ना? Plus 90. और else तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो theta 3 is theta 1 plus 45 होता है. ये भी चलेगा. दोनों में से कोई भी एक रिलेशन यूज करो,
you'll get this theta 3, theta 4. If you don't want to find out, you can do this way. So once you know this one, now one more question is asked. Also find the normal and shear stress on AB plane. Now where is the AB plane? You can see here it is at an angle 30 degree with respect to a plane having 50 MPa stress. तो अब ये कैसे करेंगे? Can anybody suggest? Yes. सर वो सीडी लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाएंगे हाँ. और वो तो पॉइंट को देखो लोकेट करेंगे सीडी लाइन से सर्कल के ये जो साथ। सीडी लाइन है उससे 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री एंगल बनाएंगे बिकॉज हमारे हाँ, डायग्राम में अगर 2 30 है तो मेरे मोर सर्कल में वो डबल हो जाता है बराबर ना. जैसे हमने 2 थीटा को थीटा लिखा वहाँ पे तो वैसे यहाँ पे मुझे डबल. ये मोस्टली लोग याद तो रहता है लेकिन वो भाई गए में 10 मार्क के लिए सॉल्व करना है एग्जाम में एंड यू फॉरगेट इट. वो तुम 30 लगे सॉल्व कर देते हो तो मतलब तुम्हारा सब कुछ प्रोसीजर पता है बट ये छोटे से मिस्टेक की वजह से यू विल लूज 50-40%. सर आप लास्ट स्टेप एक बार रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली मैं मिस किया हूँ नेटवर्क की वजह से. लास्ट स्टेप सर, अभी आपने जो थीटा वाला बताया ना उसके पहले वाला स्टेप. दिस वन थीटा. यस सर, मैं एक्चुअली नेटवर्क की वजह से. ओके. अगर मिस होता है यू कैन फाइंड लेटर ऑन आल्सो. बट थीटा मैंने कैसे फाइंड किया? ये जो टाउ मैक्सिमम का प्लेन है उसका एंगल, ठीक है. टाउ मैक्सिमम का प्लेन जो है सॉरी हाँ टाउ मैक्सिमम का जो प्लेन है उसका एंगल मैंने मेजर किया ये 2 थीटा. एंड वो कैसे मेजर करोगे? तो यू कैन सिंपली राइट 90 माइनस 2 थीटा 1 और एल्स यू कैन थीटा. अगर तुम्हें इससे मेजर नहीं करना है, ओके, तुम्हें उससे मेजर नहीं करना है अपना डायग्राम से, यू कैन सिंपली यूज द रिलेशंस व्हिच यू डिराइव्ड अर्लियर. थीटा 1 प्लस 45 इज योर थीटा 3 एंड थीटा 3 प्लस 90 करोगे तो यू विल गेट थीटा 4. ठीक है, सो वो तुम्हें मिल जाएंगे. ओके. नाउ the next part which we need to deal is how to locate plane AB which is at an angle 30 degree with 50 MPa stress. So this is 50 MPa stress. ये जो ये horizontal axis पे सॉरी हाँ CD लाइन हमारा बेस लाइन है. जो भी एंगल मेजर करेंगे हम लोग एंगल बेस लाइन से मेजर करेंगे बिकॉज वो 50 MPa एंड 20 के लिए हमने जो रिजल्टेंट फाइंड किया है वो उसी पे है. ओके बराबर. तो अभी हमें क्या करना है? What we need to do is we need to find out the angle. We need to measure find out a plane at an angle of 30 नहीं 60 डबल. ठीक है, तो डबल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वो सिंपली 60 डिग्री मेजर करेंगे. अभी ये मेजर करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं ग्राफिकली कैसे करूंगा? देखो यहाँ से 60 डिग्री मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ तो लाइन आएगा. अभी मुझे पता नहीं है कितना एक्सैक्ट है. ठीक है, ऐसा लाइन आएगा. ये लाइन को थोड़ा येलो कर देता हूँ बाय शेप आउटलाइन येलो. ओके, ये मेरा लाइन येलो नहीं तो डार्क लाइन. ये मेरा लाइन है. अभी अज्यूमिंग दैट कि ये एंगल कितना है मेरे लिए 60 डिग्री. ओके, अब ये जो लाइन है जो मैंने अभी लिया वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. राइट, वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. यहाँ पे एक इंटरसेक्ट करता है और इधर एक इंटरसेक्ट करता है. बराबर. हमें वो पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस बोला है तो कोई एक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे. सो इफ आई लोकेट दिस पॉइंट एंड इसको ऐसे नीचे लेके आऊँ, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे परपेंडिकुलर बन के और ये मुझे एक पॉइंट मिलेगा. यहाँ से लेके अगर ओरिजिन तक का डिस्टेंस में मेजर करूंगा ओरिजिन तक का तो मुझे मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस. क्या मुझे मिलेगा? नॉर्मल स्ट्रेस. एंड अगर मैं shear स्ट्रेस की वैल्यू मेजर करता हूँ ये वर्टिकल वैल्यू तो मुझे मिलेगा shear स्ट्रेस. सो आई विल गेट दिस एज नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस. गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? हाउ टू गेट नॉर्मल स्ट्रेस, हाउ टू गेट द shear स्ट्रेस बाय लोकेटिंग. ये एंगल में कितना मेजर करूंगा? 60 डिग्री. ओके, एनी डाउट इन दिस? सर वो परपेंडिकुलर है ना किसको? अरे सीडी को. वक्त तुम्हें परपेंडिकुलर दिख रहा रहेगा. अभी मैं तो मैं थोड़ी ना ये लेके बना रहा हूँ. बट व्हेन आई टेक दैट ग्राफिकली जब तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होगा तो यू कैन डू दिस बेटर डायग्राम. ओके, बट स्टिल अगर किसी के पास नहीं है, जैसे कि अभी मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सिंपली विदाउट प्रोट्रैक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं मुझे पता है कि ये एंगल 60 है. तो अगर ये एंगल 60 है तो आई विल फाइंड आउट दिस एंगल कितना आता है by geometry, and once I know this angle, I know the hypotenuse. I can easily find out this horizontal horizontal base and the height.
हाइट मेरा होगा डायरेक्टली टाउ, ये हॉरिजॉन्टल में से ये 10 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द shear stress. सो जिसके पास प्रोट्रैक्टर नहीं है वो ज्योमेट्री से भी कर सकता है. इट इज अप टू यू हाउ यू नो ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू यूज इट. ज्यादा कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, साइन कॉस टैन. ओके, डन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? So can Yes, we sir. move on to the next one? Yes. So now let's go to the next one. सर प्रीवियस प्रॉब्लम में एक डाउट था बोलो. सर. हमने जो वो डायग्राम ड्रॉ किया शेयर स्ट्रेस का, जो हम लोगों ने तो फिर टाउ का जो वैल्यूज लिया था 20, तो अगर हमने वो मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिया था, तब जहाँ पे प्लस लिया वहाँ कुछ पे फर्क नहीं नेगेटिव पड़ता, लिया था, आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा, बट उसका हाँ, प्रैक्टिकल मीनिंग वही रहेगा. तो अगर आंसर नेगेटिव में रहेगा तो चलेगा ना? वो देखो मल्टीपल, अभी देखो मैं तुम्हें एक बताता हूँ. आई कम बैक टू योर पॉइंट. सी हियर नाउ व्हेन वी लेट्स से ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, राइट? बराबर. मैंने ये ऐसा एंगल बोला. अभी कोई ये एंगल को प्लस थीटा बोल सकता है, कोई ये एंगल को ये वाला एंगल भी बोल सकता है. रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है? तो वो चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारा प्लेन कुछ अलग आएगा, यू विल गेट माइनस. लेट्स से अभी ये प्लेन को मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से ये एंगल 45 है, so I can say that this theta is equal to plus 45, or else I can say this angle is how much, 45 माइनस किया तो ये जो भी है, मतलब कितना था, ये 45 ही रहेगा यहाँ पे. तो यहाँ से मतलब ये पूरा ये एंगल भी मेजर किया मैंने सपोज, तो भी मुझे वही प्लेन पे मैं पहुंचता हूँ. ये एंगल मेजर किया तो भी वही प्लेन पे पहुंचता हूँ. रिवर्स ऑर्डर में नेगेटिव एंगल मेजर किया तो भी. तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्लेन, बट उसका फिजिकल मीनिंग चेंज नहीं होने वाला कि वो कौन से प्लेन पे है. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एग्जामिनर हैज टाउ के ऑल वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा? हाँ, शेयर स्ट्रेस के वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं आएगा ना. देखो कैसे आएगा शेयर स्ट्रेस का वैल्यू का डिफरेंस. तुमने ऐसे बनाया या ऐसे बनाया, ठीक है? हाँ. ये शेयर स्ट्रेस इधर भी होता है, ये इधर भी होता है ना, ठीक है? नहीं चेंज आएगा. यू कैन ट्राई इट. नेगेटिव ओके सर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है. ठीक है सर. ओके, okay, fine. So now let's go to the next problem. Now this problem is a word problem given है यहाँ पे. तो word problem में या सो वर्ड प्रॉब्लम में हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ द स्ट्रेसेस आर अप्लाइड, एंड देन वी हैव टू सॉल्व. उसमें अगर इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ करते हो, प्रॉपर्ली एंगल इंटरप्रेट नहीं कर पाते, देन इन केस देन दैट केस यू विल ड्रॉ अ रॉन्ग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम, एंड उसके हिसाब से जो तुम सॉल्व करोगे वो तुम्हारा सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है. See here, at a point on a strained body, there are tensile stresses of 60 and 30 acting on two mutually perpendicular planes. So I will take this kind of strained body. Okay, 60. अभी ये 60 कहाँ पे लेना है, it is your choice. तो मैंने यहाँ पे लिया 60 MPa like this, and उसके mutually perpendicular डायरेक्शन में दोनों टेंसाइल बोला, इसलिए इसको भी मैं 30 MPa बोल रहा हूँ, एंड यहाँ पे नीचे भी वो 30 MPa रहेगा. Acting on two mutually perpendicular planes together with a shear stress of 20. Okay, तो ये shear stress मैं ले रहा हूँ, this is 20 MPa, and यहाँ पे भी वही रहेगा because we are solving for uniform shear. Okay, locate the principal planes and stress, and also locate the sigma n and tau on a plane 40 degree to plane on which 60 MPa stress is acting. मतलब ये प्लेन को 40 डिग्री, तो मेरा जो AB प्लेन रहेगा वो एंगल ऐसा रहेगा, ये 40 डिग्री रहेगा, and I will call this as my plane AB, and on this plane you have to find out the sigma normal and tau values. Okay, so you have to find out this sigma normal and tau. ठीक है? तो अभी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? तो अभी देखो हमने मोर सर्कल को देखा था, अभी इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व करने, एनालिटिकली सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ. सो एनालिटिकली इट इज वेरी सिंपल इफ यू नो द फॉर्मूलाज, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. तो फॉर्मूलाज में क्या क्या है? सबसे पहले सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया है 60 MPa, आई विल राइट डाउन दैट. सिग्मा वाई का वैल्यू दिया है 30 MPa, लेट अस राइट डाउन दैट. Tau xy is given as 20 MPa, let us write down that also. Theta here it is given as
40 डिग्री। अभी नॉर्मली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डबल करने की जरूरत नहीं, मोर सर्कल में डबल करेंगे। Okay, so what they are asking you to find out principal stresses and principal strains. So very first thing I will write down this way, principal stress and planes. So what is the formula for principal stress and planes? So let us go back to the slide. For those who don't remember, this one. You will get sigma x plus sigma y by 2 plus minus root of this, right? So let us write down that. So what is my formula? P1 और P2 दोनों का वैल्यूज मिलेगा हमें सिग्मा x प्लस सिग्मा y by 2 प्लस माइनस हाफ स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x minus sigma y the whole square plus 2 tau xy the whole square. Can you get me the values? ये कितना होगा 60 plus 30 45 by 2 plus minus half square root of 60 minus 30 the whole square plus 2 into 20 the whole square. कितना आएगा इसका दो वैल्यूज P1 का वैल्यू कितना आएगा 70 and 20. हाँ बोलो कितना 70 और 20. 70 MPa दोनों पॉजिटिव आता है Yes sir. 20 MPa. बट इनका अभी लोकेशन भी चाहिए, तो लोकेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? यस लोकेशन के लिए हम लोग tan थीटा फाइंड करेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या था tan ऑफ 2 थीटा 1 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. So it is 2 into 20 divided by 60 minus 30. कितना आएगा ये? यहाँ से मुझे बताओ थीटा 1 का वैल्यू कितना आएगा एंड थीटा 2 का वैल्यू कितना है? थीटा 1 का वैल्यू कितना आएगा? 53 और 37. कितना? ये कितना आएगा थीटा 1? 53 2 थीटा 1 आएगा तो 26.56 26.56 पॉजिटिव आया ना? हाँ पॉजिटिव आएगा 27.56 डिग्री एंड थीटा 2 कितना होता है? थीटा 2 इज बेसिकली थीटा 1 प्लस 90 तो 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 116.56 117.56 ना? ओके नाउ मैक्सिमम shear plane एंड स्ट्रेस दोनों कैसे फाइंड करेंगे? तो यू नो दैट टाउ मैक्सिमम इज बेसिकली प्लस और माइनस हाफ स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर प्लस 2 टाउ xy द होल स्क्वायर। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, एक तो तुम ये यूज करो या फिर यू कैन राइट डाउन P1 minus P2 by 2 where P1 P2 are what? The principal stresses. Okay, बिकॉज तुम्हें पता है P1 minus P2 होता है डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल एंड उसका हाफ किया तो रेडियस एंड रेडियस इज नथिंग बट द टाउ मैक्सिमम, राइट ना? हमने ये मोर सर्कल में भी देखा है, ठीक है? तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस। ये कितना है? कितना आया था तुम्हारा? 70 minus 20 by 2 कितना? 25 MPa. Okay, that is your tau maximum. But how to get the location? So tan 2 theta 3 is how much? Formulas देखेंगे. So it was sigma y minus sigma x upon 2 tau x, right? Sorry, कहाँ पे गया मैं? Sigma सर y minus sigma x upon 2 tau xy. तो ये कितना होगा? माइनस 30 minus 60 divided by 2 into 20. इसको सॉल्व करो, थीटा 3 तुम्हारा कुछ नेगेटिव आएगा, फिर थीटा 4 कितना आएगा बता? यस minus 15.48 माइनस 15.48 15.48 डिग्री और ये minus 105.48 माइनस 10 कैसे हो जाएगा? प्लस 90 ऐड करोगे ना? अच्छा 74 पॉइंट समथिंग ना?
हाँ 74.51 52 हाँ 52 ठीक है। अभी देखो एक यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन वाला ये है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने फॉर्मूला यूज किया होता थीटा 3 के लिए, हम लोग को ये भी रिलेशन हमें पता है कि थीटा 3 जो होता है वो थीटा 1 प्लस 45 होता है। ये सब थीटा 1 प्लस 45 होना चाहिए ना, ये ऐसा होता है ये। तो अभी मैंने अगर ये सॉल्व किया होता और थीटा 1 का वैल्यू मेरे लिए कितना था 27.56 प्लस 45 किया होता तो कितना आता, ये जरा ऐड करो 72.56 72.56 56 डिग्री। तो अभी मुझे बताओ ये थीटा 3 करेक्ट है कि ये करेक्ट है? यस एनीबॉडी? जो आंसर आ गया ना, फिर क्या करेंगे, कौन सा करेक्ट है? सी हियर, अगर ये मेरा प्लेन होता -72 डिग्री मतलब कैसे होता है 72.56 डिग्री मतलब कितना, अरे ये तो 90 है ना, 70 मतलब समवेयर यहाँ पे ऐसे कुछ तो आएगा ना। चलो ये भी नहीं बोलता हूँ ऐसे, लेट अस का ये कितना है 72.56 बराबर। तो ये हो गया एक प्लेन 72.56 वाला, और ये -15.48 मतलब कितना, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। लेट्स से अगर एंगल मैंने नीचे लिया तो अगर मैं ये कि 72 ही आता है क्या बराबर से, देखो 72 ना 27.56 थीटा 1 हाँ सर 72.56 और ये 15.48 ही आता है कि चेक करो जरा, मतलब थोड़ा 90 में फर्क आ रहा है 2-3 एंगल का। एक मिनट, लेट मी चेक। सर थीटा 3 18.43 वही बोला मैंने, ऐसा गड़बड़ है थोड़ा, मेरा मैच नहीं हो रहा था ना इधर। हाँ कितना 18.43 4 3 3, ये कितना आएगा 71.56 71.56 71 की 72 रे 71 का हाँ सर प्लस 90 के 71 1 डिग्री का फर्क कैसे आ रहा है फिर? सर वो देखो सर थीटा 17.43 होगा। सर थीटा 1 26.56 होगा। 26.56 है कौन सा थीटा ये? 1 थीटा हाँ 1 थीटा अच्छा 1 ये तुमने गड़बड़ किया है, वही मैं बोला मेरा प्रिंसिपल पता नहीं, मैं जो पढ़ा वो रॉन्ग कैसे हो रहा है, तुम सही बताओ रे वैल्यूज। ओके तो 116 हो जाएगा नीचे हाँ 116। 6 हाँ ये देखो थीटा 3 थीटा 4 क्या होता है, ऐसे दो प्लेन होते हैं ना जहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो देखो मैंने अगर ये सॉल्व किया होता तो मुझे ये वाला वैल्यू मिलता 71.56। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे अगर मैंने ये यहाँ से सॉल्व किया तो मुझे एक प्लेन मिला, बट अगर मैं ऐसे करता तो मुझे ये वाला प्लेन मिलता जो दूसरा यहाँ पे है, गेटिंग इट? और इसमें अगर मैं 71.56 में मैं अगर और 90 ऐड करता तो कितना हो जाता 161.5। हाँ तो अगर थीटा 4 में लिखता 161.56। देखो दो प्लेन हमारे ऐसे होते हैं ना परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इधर भी टाउ मेरा इधर भी मेरा टाउ मैक्सिमम है और ये वाले प्लेन पे भी मेरा टाउ मैक्सिमम ही है बराबर। तो एक प्लेन है, एक तो मैं लिखूंगा उसको 71.56 और दूसरा अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ तो 161 मतलब यहाँ से लेके इधर तक ये 161, ठीक है? तो इसको मैं 161.56 बोल सकता हूँ या इसको मैं बोल सकता हूँ -18 पॉइंट समथिंग। अरे अंडरस्टैंडिंग इट? प्लेन तो वही है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज तुम्हारे अलग अलग आ सकते हैं, बट उसका मीनिंग क्या है वो जरा ठीक से देखने का कि भाई ये सेम प्लेन आया कि नहीं। समझा मेरे को? समझा क्या? मैंने अगर ऐसे सॉल्व किया होता तो मुझे ये दो वैल्यूज मिलते, एक तो 71.56 दूसरा 161.56 या जो भी है बराबर। तो 71.56 मतलब ये प्लेन और 161.56 मतलब ये प्लेन।
और मैंने अगर ऐसे सॉल्व किया तो मुझे दो वैल्यूज मिला, एक है -18.43, दूसरा है 71.56। सी यार 71.56 मतलब ये प्लेन, -18 मतलब ये वाला प्लेन है, तो दोनों प्लेन ही ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So whether however you find out, your values should मतलब उसका जो practical meaning है to locate the planes should be same. Okay, we have different ways of representing a plane by angle measure कहाँ से कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। तो एंगल तुम्हारा नेगेटिव है, और तो ये -18.43 और ये तुम्हारा जो 161.56 है, दोनों एक ही प्लेन है। One is measured in a clockwise direction and one is measured in anti-clockwise. Okay, understood? Clear? तो अभी ये Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि उसका आंसर रंग है सर, मेरा राइट है, दोनों का आंसर मिसमैच है, ऐसे कैसे आता है एक ही सम के लिए। तो मे बी कन्वेंशन तुम्हारा अलग हो सकता है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट इन दिस, यू हैव टू फाइंड आउट सिग्मा एन एंड टाउ। सो फॉर दैट आल्सो वी हैव टू फॉर्मुलेट। सी हियर द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिराइव्ड, at any plane you should get this formula for sigma n and tau for this one, right? कैसे करेंगे ये formulas? कहाँ पे गया? Yeah, here. So in this particular case, now I will take the C part. ठीक है, sigma n and tau on plane theta equal to 40 degree. तो सिग्मा n का फॉर्मूला सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 ब्रैकेट में सिग्मा x माइनस सिग्मा y cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। बराबर है ना फॉर्मूला? एक बार चेक करो। क्लियर? करेक्ट है? तो वही सेम Yes, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। Here, so here substitute करो values और give me the answer। ये कितना होगा? 60 plus 30 divided by 2 plus 60 minus 30 by 2 cos of 80 degree, because 2 times 40 करोगे तो 80 हो जाएगा, plus 20 sin of 80 degree। Okay, and your tau का 67 value is, point बोलो, 67.30. इसका आंसर आता है 67.30 30 MPa। एंड ये वैल्यू कितना आएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, कॉस के बदले आएगा साइन 2 थीटा, राइट, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। यही है ना टाउ का वैल्यू। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट सम वैल्यू, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्ट्रेस आल्सो, दैट इज रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ओके, सर टाउ की वैल्यू 11.2 29. 11.3 टाउ का वैल्यू कितना है? 11.3 11.3। okay, 11.3 MPa, and we will get this the value of sigma x and tau, the resultant find karo and give me the value in MPa। 13.96. कितना? how much? 68.24. 68.24। okay, fine। So now similarly we can go for the next question as well। yeah, so now the next question is the rectangular bar of cross section area 11,000 mm square. They have given the cross section area and is subjected to tensile load P as shown in figure। okay, the permissible and the normal tangential stress on oblique plane BC you have to find out। okay, the 7 MPa, sorry, the normal and tangential shear stress on oblique plane BC are given to you। oblique plane BC पे normal stress और shear stress कितना आ सकता है वो तुम्हें दिया हुआ है, and you have to just find out the value of safe load P। कैसे करेंगे? any idea how we can do this? It's a very simple problem, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। I want you to think on this। Can we use our regular formulas to this case? Yes, no, Yes, sir. yeah,
वी कैन यूज, मतलब हम शेयर जो टाउ हम यूज करते हैं वैल्यूज में, जो फॉर्मूलाज हमारे हम रेगुलरली यूज करते हैं वो 0 ले लेंगे, अनदर वैल्यूज शुड बी सेम. I'm not मतलब I can't hear you. Yes, anybody हम else? पुराने वाले जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं, हाँ. जैसे लाइक द टाउ वंस एंड द सिग्मा वाले फॉर्मूलाज, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड जो वैल्यूज हमारे को नहीं दी है हम सिंपली उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे. 0 करेंगे. ओके. हाँ, बट अभी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है ही नहीं ना हमारे पास, वही तो अननोन है. तो कैसे करेंगे, मतलब जस्ट वांटेड टू आस्क. सर सिग्मा y तो 0 है ना इसमें. सिग्मा वाई 0 है. ओके, हाँ, वेरी गुड. सिग्मा एक्स को पी ले लेंगे. सिग्मा x ले लेंगे. सिग्मा एक्स को मतलब पी ले लेंगे. अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तुम जो वैसे बता रहे हो वैसे मैं डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ. अपने केस में क्या क्या है, ये मेरा बार है, ये है सिग्मा एक्स जो अननोन है, वी डोंट नो. यस. बराबर. Yes. सिग्मा वाई है ही नहीं, तो आई एम नॉट राइट ओनली. सिग्मा वाई 0. ओके, हाँ, व्हाट एल्स. तो अभी ये प्लेन BC कैसा है, किसके साथ एंगल है, अगर तुम्हें पता है तो एंगल हमें, ये एंगल कितना रहेगा, 30 30 डिग्री, बिकॉज हमारे फॉर्मूलाज में एंगल विथ वर्टिकल प्लेन है, राइट. जो ये वाला प्लेन है, सिग्मा एक्स वाला प्लेन के साथ हमने एंगल लिया है. अगर एंगल चेंज करेंगे तो कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस हो जाता है, राइट. सो दैट इज वेरी केयरफुल कि हमें थीटा 60 नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, राइट. अगर मैं यहाँ पे अभी ये BC प्लेन ऐसा है ना, मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेप्लिका, समझा ना, जस्ट टू मैच विथ माय केस व्हिच आई हैव डिराइव्ड अर्लियर. अभी वर्टिकल के साथ कितना एंगल है, 30. 30 तो रहेगा. हाँ बोलो. अच्छा, तुम बोल रहे हो कि ये प्लेन चेंज किया क्या मैंने, प्लेन चेंज नहीं किया मैंने, जस्ट डायग्राम को फ्लिप करके फ्लिप कर बनाया, दिया. कुछ नहीं किया हुआ एक्स्ट्रा. ओके, सो 60 डिग्री 30 डिग्री. सो ये मेरा थीटा अभी 30 डिग्री है, बराबर. थीटा 30 डिग्री है, सिग्मा एक्स पता नहीं है, बट व्हाट आई नो इज ऑन दिस प्लेन सिग्मा n का वैल्यू और ऑन दिस प्लेन टाउ का वैल्यू इज गिवन टू अस, इज इट नॉट. सिग्मा n का वैल्यू कितना दिया है, 7 MPa, 7. एंड टाउ का वैल्यू इज कितना दिया है, 3.5. 3.5. 3.5. अभी कैसे करेंगे, एंड सिग्मा y यहाँ पे 0 है, बराबर. तो फॉर्मूला में डालेंगे आ जाएगा. हाँ, बस सिग्मा कोई बाई एक 0. फॉर्मूला में डालो. चलो सिग्मा टाउ वाला फॉर्मूला लेते हैं. टाउ वाला फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 cos, सॉरी नॉट cos, sin 2 थीटा माइनस टाउ xy cos 2 थीटा. टाउ xy है क्या हमारे पास, 0 है ना ये तो. हाँ. यस अरे सर. इतना ही बचा, सिग्मा y भी 0 है, तो और कम बचा. सिग्मा x कितना है पता नहीं, डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ 2 60. into 30, 60, right? And this is how much, 7 M. 3.5. 3.5. 14 can by you root get 3. sigma x कितना आया, 14 by root 3. 14 by root 3. यस अच्छा, सर. उसका वैल्यू बताओ रे. हाँ, 1 by root 3 कितना होता है, 0.8 समथिंग, 1.60. 1.1 60. आएगा आंसर. अच्छा, ये आधा आएगा. वही ना, सर 8.09 है. 8.09. ओके, 8.09 MPa, ठीक है. बट हमें सिग्मा एक्स वाले नहीं पूछा है. व्हाट इज सिग्मा एक्स, इट इज लोड P अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट ना. 8.09 MPa. सो हाँ, व्हाट इज द P वैल्यू, 8.09 मल्टीप्लाई बाय 11,000, राइट ना. कितना आता है, 8,899. 8,899, बराबर है. एक और 0 आएगा. और एक 0 आएगा. हाँ. न्यूटन में, एंड किलो न्यूटन में करोगे तो 88.99 किलो न्यूटन, राइट. यस सर. हाँ, बट अभी गड़बड़ है.
ये आंसर हो गया क्या? सम हो गया इधर खत्म? नहीं, they are saying it is these are the principal permissible normal and tangential. तो मैंने अज्यूम किया कि भाई shear stress का मैक्सिमम वैल्यू लेके मैं चेक करता हूँ कि P का वैल्यू कितना आता है। अगर मैं अभी सिग्मा लेके चेक करता हूँ, सिग्मा नॉर्मल, क्या फॉर्मूला था वो? सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2, राइट ना, प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ xy sin 2 थीटा। अगर इसमें तो ये जीरो है टर्म, यहाँ पे ये भी जीरो हो गया, इधर ये भी जीरो हो गया। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। ये वैल्यू अगर 7 लेके मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा सिग्मा x बाय 2 प्लस सिग्मा x बाय 2 cos ऑफ 60 cos 60 1 बाय 2 होता है ना? यस सर। तो सिग्मा x बाय 2 प्लस सिग्मा x बाय 4 3 sigma x by 4, तो 3 sigma x by 4 is equal to 7. What is sigma x? 9.33. 9.33. हाँ 9.33, राइट। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आएगा? P by A is 9.33, तो P is equal to 9.33 into 11,000. How much? 102,666. 102.67 kilonewton. अच्छा ठीक है, इतना लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि सेफ लोड कौन सा है। तो इफ आई गिव दिस लोड, इट विल फेल ड्यू टू shear, बिकॉज shear ओवरकम हो जाएगा ना। shear की वजह से कितना लोड दे सकता हूँ मैं? 88.99 तक की shear सेटिस्फाई करेगा, राइट। उसके बाद shear Yes, stress sir. 3.5 से ज्यादा होगा and it will fail in shear. So they are asking you to find out the safe value of P. So safe value will be whatever is the lesser value. So therefore safe load to satisfy both the conditions is equal to 88.99 kilonewton. Understood? तो Okay. वो बीसी का एंगल चेंज क्यों किए तो वो एक्सप्लेन करो ना। क्या? वो डायग्राम में हाँ उसमें हम लोग ने देखा ना सर, वो 30 दूसरे साइड ले लिया ना प्लेन। 30 डिग्री क्यों लिया एंगल? नहीं, वो प्लेन उसका दूसरे साइड क्यों लिया उसको? अरे वो तो तुम्हें समझने के लिए मैंने, वो तो प्लेन अलग नहीं किया है। देखो बताता हूँ, वो जो मेरा ये डायग्राम था ना, ये मेरा डायग्राम है, इसके हिसाब से मैंने फॉर्मूले ड्रॉ किए, डिराइव किए। ये डायग्राम में मेरा थीटा किसके साथ है? वर्टिकल के साथ है ना। इसके लिए मैंने वर्टिकल के साथ एंगल लिया है, और वो तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए इसलिए मैंने वो बना दिया, अदरवाइज इट डजंट मैटर। वो मैंने कुछ डायग्राम चेंज नहीं किया, मैंने इसको फ्लिप किया। ओके डन? एनी डाउट इन दिस? सर वो P की वैल्यू कैसे सिलेक्ट की, बस वो एक बार वापस बताएं। P का वैल्यू देखो, दोनों वैल्यूज में से जो छोटा वैल्यू है, अगर मेरा केस में मैं अगर 102 किलो न्यूटन वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, तो वो 102 किलो न्यूटन अगर मैंने यहाँ पे डाला, तो मेरा जो टाउ का वैल्यू है ना, ये टाउ का वैल्यू 3.5 से ज्यादा आएगा। दे आर सेइंग दैट कि ये जो 7 और 3.5 है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है मटेरियल का। मटेरियल पे अगर 3.5 MPa से ज्यादा shear stress आता है, तो इट विल फेल इन shear. That is given here, the permissible, normal and tangential. परमिसिबल का मतलब ये नहीं कि उतना स्ट्रेस आ रहा है मटेरियल में, इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा आएगा तो मटेरियल विल नॉट विथस्टैंड इट, राइट। तो फॉर दैट मैं क्या करूंगा, दोनों कंडीशन लेके मैं P का वैल्यू फाइंड किया। जो छोटा है, फॉर एग्जांपल 88.99 अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ P, तो in that case my shear stress in the material will be 3.5 and my sigma n will be of course less than 7, which is satisfying both the conditions, right? I am not Yes, going sir. beyond Okay. shear stress maximum value and normal stress maximum value as well. Okay, sir. Both the maximum, that is 7 as well as 3.5, won't be reached simultaneously in the material. मटेरियल में दोनों मैक्सिमम वैल्यूज एक साथ नहीं होंगे, एक तो वो मटेरियल shear में फेल करेगा या फिर टेंसाइल में फेल करेगा। ओके okay, now let's go to the next problem. Yeah, now there's a case given, you have to find out the principal planes and planes of maximum shear and its magnet. So no, this is not in our regular format. तो इसको कैसे फॉर्मेट मिला है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो we can simply resolve this component, और कुछ करना नहीं है हमें। सिंपली ये अगर मैंने ऐसा ब्लॉक लिया, ठीक है, तो ये जो 50 है, इसका दो कंपोनेंट्स तो बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये सबको पता है। ये जो 50 है, इसका एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा, एक कंपोनेंट सॉरी इधर रहेगा। ये होगा 50 cos 30
और ये कितना होगा 50 sin 30 बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक ही लोड देता हूँ, सॉरी एक ही स्ट्रेस देता हूँ 50 cos 30, और यही हमारा क्या है सिग्मा एक्स। ये क्या हो गया हमारा टाउ एक्स वाई, कितना है वो 50 sin 30, 50 sin 30 तो 25 होता है, और ये हमारा कितना है 30 MPa। लेकिन जब भी कोई शेयर स्ट्रेस एक्ट करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस आता ही है, क्योंकि मटेरियल इज पूरा एक कॉर्नर दिया है, वो पूरा मटेरियल ड्रॉ करके दिया नहीं है। तो ऑल दिस देयर विल बी अ सेम अमाउंट ऑफ टाउ एक्स वाई हियर एज वेल। सो इसका रिएक्शन यहाँ पे आएगा 30 पे, और इधर इसका रिएक्शन आएगा जो हमने बाकी ड्रॉ किया था वैसे ही सेम है ये केस। तो खाली हमें वैल्यूज नहीं दिए थे, वो अभी वैल्यूज मिल गए। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस बाय वॉट एवर द मेथड यू वांट। इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय एनालिटिकली, तो एनालिटिकली सॉल्व करना प्रिंसिपल प्लेन्स के लिए सिंपल रहता है। प्रिंसिपल planes and principal stresses. So either you draw more circle, or you can use these formulas which you have derived P1 P2 equal to sigma x plus sigma y by 2 plus minus half root of sigma x minus sigma y square plus 2 tau xy the whole square. ठीक है, and tan 2 theta is equal to sigma x minus sigma y upon 2 tau xy. यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 सब मिलेगा। एंड सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम शेयर के लिए टाउ मैक्सिमम सिंपल P1 माइनस P2 बाई 2, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। एंड 2 ये भी नहीं किया तो डायरेक्टली थीटा 2 एंड थीटा 3 हमें तो वैसे भी, सॉरी थीटा 4 एंड 3 एंड 4 तो वैसे भी मिलता है, थीटा 1 प्लस 45 एंड दैट इज थीटा 3 प्लस 90। एनीवे यू कैन डू दिस। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम भी कभी कभी आ सकते हैं इन फर्स्ट क्वेश्चन वेयर इट इज कंपलसरी में 44 मार्क्स 5 मार्क्स डिपेंड्स। ओके, yes, any doubt up till now about principal stresses and strains? If not, we will take a very short break and we can resume back for the new chapter. It's 11:30, we can meet again at 12 o'clock. Fine? Yes, sir. Yes, somebody is asking some question.